Welcome to our free Figma AI course where I will teach you how to use Figma Make, Figma Sites and DevMode MCP server. Every episode is in English as well as in Hindi. This is episode number 3 and in this video you will learn the basics of Figma sites, and by the end of this video you will be able to make your own functional websites. This is your instructor Ansh Mehra and you are learning from the Cutting Edge School. Figma Sites is still in beta and it's available to starter plans with a few restrictions. So without further ado, let's start with the tutorial. Alright, for those of you who are here for the first time, let me tell you that this is an ongoing series and you are currently on lecture number 3. Now it's completely okay if you've not seen lecture 1 and lecture 2 because the entire course is basically covering the latest AI tools under the umbrella of Figma. Now Figma was originally a tool that catered to just designers, but today Figma is catering developers, product builders of all kinds. In this lecture, I'm going to give you a walkthrough of their latest tool called Figma Sites. The question is, why do you need to learn Figma Sites when there are so many other applications in the first place? Number one reason is that most designers work on Figma Design, and the shift from Figma Design to Figma Sites is way more seamless, way more economical, and way more designer friendly as compared to other applications, whether they are no-code applications, semi-code applications, or vibe coding applications. A lot of vibe coding applications are not been able to give you that level of flexibility. You spend too much time vibe coding small differences, and you always think as a designer that I wish I had more freedom and more control into the small granular aspects of each and every component, just the way I had on Figma Design. So Figma Sites is a very good solution for anybody who has an agency or who has an in-house Figma design team so that they can ship websites way faster. Now this is the beginning of how you need to use Figma Sites. In lecture number 4, I will be building something with you from scratch, but today I'm going to show you how Figma Site truly works. And this entire website is going to be available on the Figma community, so you can download it for free and actually make notes. This is how the syllabus looks like. I'm not going to waste time going through it. So let's go through module number 1, where we actually see how Figma Site really works. Now, if I go to the Figma dashboard, on the top right corner, you will now see all of the new Figma apps, and I have been personally loving them. If you go to Figma Sites, a new window opens up where there's a pop-up, and these pop-ups are basically templates that you can just plug and play. Now, a lot of you here would be interested in making your own portfolio, right? Or maybe make your own CV. So what I will do is I'm going to open this read.cv template, and if I click on preview in browser, you can actually see how the final output would look like. It's like a pretty simple way to show your work and, put links to your case studies. And I'm going to click on use this template. Now, as soon as I do that, this is how the interface changes. Now, on the right side, we have something very similar to Figma Design, but on the left side we have a bunch of new things. So what I'm going to do is I'm going to save this as CV resume, and the first thing that now you need to know is how does the file option works. So if I go here, this is the file icon, and this is where I can access all of my web pages. And then once I select a web pages, I can go through all of the layers one by one. Now, if you notice, anytime you make a website, you have to make a desktop version and a mobile version. It's not necessary to make a tablet version, but if you have a website that is going to be accessible by like thousands of people, then a tablet version works. But in this case, because the website design is very narrow, there's not much complexity, just the desktop and the mobile version can work. In the next episode, I will actually show you the intricate details of these breakpoints, but for now, let me just give you a tour of the interface. Now, when it comes to web pages, you can create as many web pages as you want, and you can select any of these components, go to interaction, and you can link this specific component to any other page or URL. So if I go here and let's just say case study, and I can take this specific component and link it to a specific page. So that is how you can take a certain component and link it to another web page. So I'm going to delete this for now so that we can keep things simple. So it is the file option where you can build and manage your entire site structure and all the layers within it. Now below file, we have insert, and this is where you can find a lot of pre-built elements like your navigation, your footers. You can also access your libraries. So once I click on the plus icon, you have blocks which already have ready-made stuff. You have different kinds of pages, navigation elements, hero
hero elements. These are the first folds that come on your website. You have specific features, you can embed specific content. Otherwise, if you want to create something of your own, you can import your own components as well. And yes, if you have different states of that component, they can be now directly converted into code with all of the interactions in place. So after insert, we have search, and this is very straightforward. You can find elements across your website very, very quickly. And then we have something really, really cool. Now this is called the code component. Now, if I go here, this is something which is very, very new. No other AI website creators or vibe creators have this. And this is where you can simply spend time creating a very specific component. You can click on the chat option and I can say create a ticker, or actually a countdown that runs out, something that shows there is limited time before you register your seat for an AI bootcamp. And I'm going to click on submit. And now this is where Figma Sites has a dedicated area of creating a certain component which might be too complex, right? Because obviously you can design stuff, but sometimes you need a lot of functionality. So while these are all static elements with text and images and stuff like that, it is here in Make where you can actually create those detailed components. And by the way, we've already created Figma Make videos. A lot of valuable stuff is there for people who want to enter prototyping. But the beauty of this is that you can now create a very specific component which is very functional. It has all of the interactions in place. And while this is happening, so number one is that you can code your components, you can reuse them across multiple web pages on your websites. And once you edit something, it is of course reflected across the entire website. When you make something on Figma Sites, it's extremely important to connect it with your domain and basically have your custom fonts uploaded, because it's not necessary that you're using only open source fonts. So I'm going to come back here, and while this is happening, I'm going to click on the settings icon. And this is where you can put your metadata. So metadata is all of the content that you usually see when you share your website with someone. So whether it's the site title, the description, the language that your content is in, and this is the ISO language code. So you can ask ChatGPT. Anyway, I would recommend you to make the website in English. You have the fav icon, the social sharing image. This is basically that wide image that comes up when you put something on WhatsApp or when you share something on Facebook. You can also add a password in case you're sharing your portfolio. And these are some other areas for custom code. We will cover this in the upcoming episode. When you go on domains, this is where you can go through the documentation of connecting your own personal domain. And here in the fonts area, you can upload specific fonts. If you've made a very fancy item on the hero page and there are custom fonts, you can upload those custom fonts right here. Now, for a specific web page also, you can change the page title, the meta description, the language, and the social sharing image. Because sometimes, let's just say if you have a blog website, you don't want the same cover page every single place. The beauty of Figma Sites is that once you publish something, they have a dedicated column where you can review all of your issues. Okay, so now the countdown is right here, and as you can see, you can change the accent color, and as a designer, you can actually import your own variables, you can import your own properties for certain text. So it's extremely scalable. And if I click on this icon right here, I can choose a specific portion and I can basically use them. And if I go here to the top right corner, I can paste this entire design on my canvas as a proper Figma design file. So as you can see, this is code into design, right? And if I click on this option right here, I can select make and I can just click on this here and I can start coding a certain component. So whatever I type here, that entire component is going to take shape right here. So it's very, very cool, and you can just put things here in auto layout. It's very, very similar to how we used to design things on our own. So that was the left side, and now let's come to the bottom bar. So this entire area is called the toolbar, and of course the first area is on how you can create a web page or a frame. So if I go here, you can see that we have the hand tool and the scale tool. This is where I can create a certain section. This is mostly for designing your components and not for the development. I can create a web page as well. So if I click here, you can see that this is a new web page. By default, it has only added the desktop version. And if I click here in the mobile version, I'll have this variant as well. Now, the beauty of this is that if you have your components ready, whatever you paste on the desktop, it is automatically being added on the mobile version. Now, the important thing to note here is that once you've aligned something, left aligned, centrally aligned,
Figma Sites is trying to figure out how that entire positioning will be translated into the mobile variant, and positioning itself is a separate subject. People who have worked on other tools or people who have a web design background will have an understanding of positioning, and slowly as we progress I'll take you through all of these details. Now in the bottom bar itself you have your basic menu for shapes, you have the pen tool, image adding, text, comments, and this is where you have some AI features built in. Let's cover module number 2, because now that we understand the entire UI, the question is how can you design and structure your pages? Now the important thing to note is that every page has to be designed separately. It all starts with a basic white canvas, and you need to make sure that you add all of these components one by one. For example, this is a new web page that I've added, and it is my responsibility to take a certain element from my main hero page and then link it to my subsequent pages. The next important concept is all about editing your breakpoints. So as I told you, when you go from desktop to mobile, do you see this 730 number or this 729 number? This is basically the width of your device in pixels. It basically means that if my canvas width, and when I say canvas, I'm basically trying to describe the screen on which my website is loading. As soon as the width of my screen goes beyond 730 pixels, the website will automatically switch to the desktop mode. And if I go to a shorter screen, to a narrower screen, anything that has a width of less than 729 will be showcasing the mobile version. Now, when it comes to a design of a website, you need to think in blocks. It's almost like divisions, and a certain block can then have more blocks inside of it. It's very similar to how we used to work on auto layout. So you need to first visualize what are those main blocks, how are they stacked vertically like a Jenga tower, and what all elements will be nested inside of it. And this part is very, very important, because if you organize your content properly, it will help you improve the SEO as well. And of course, you can drag the sections to, swap and reorder. For example, if I come back to my website right here, I'm going to close this menu. You can see that all of this is an auto layout. I can literally go to the content section and just swap these things. So I can just go here and let it come on the top, and everything is updated dynamically. And I would recommend you to first work on a template as compared to, building something from scratch, because that will give you a good head start. Now, there are two distinct approaches on how you can create something on Figma sites. One is that you have a separate Figma design file in some other canvas and you're copying pasting components. But the fun part is that because Figma sites is under the umbrella of Figma, all of your design tools are already here. And that is why I would recommend people to first crack Figma design. And if you're someone who knows nothing about Figma in general, we have already created a 9-week long syllabus about Figma. Every single thing has been taught here for free on learnuiux.in. Now, please note that just like UI, when you make a website, you need to have a certain set of rules, right? Whether it's a color palette, whether it's typography. So you need to make sure that those design elements are there already. If you're someone who does not know auto layout, you will struggle making a website. So I would recommend you to first clear out your basics about auto layout and then use that when you're making your Figma sites rather than using groups. When it comes to positioning elements in a web page, Figma will support 4 CSS positioning methods. In our next episode, I will actually compare all of these 4 different options so that you can see what difference do they make. And please make sure that when you're designing, you are using already made templates or components that you might have already made in Figma design files. And by the way, if you were to do a left and right comparison of Figma design versus Figma sites, you would realize that Figma sites not only has everything that Figma design offered, but it is basically an added layer on top of your design tools, which will actually help you translate your designs into like a final component. Now, when it comes to breakpoints, let's just say you're designing for 3 different devices. You have desktop, tablet, and mobile. The second concept you need to know here is about primary and secondary breakpoints. So if you're designing a website that should be opened on these multiple devices, if I go and select my tablet and if I click on right click and make it as set as primary breakpoint, whatever changes I make will be reflected to the other breakpoints. Even though my tablet width is smaller than my desktop, if I make this as my primary breakpoint, all of the changes that I add here will be reflected on desktop or mobile. Now, for those of you who do not come from a web development background, please note that when it comes to breakpoints, there's always a top to bottom stack. Because my tablet is higher right now, it's at 800 plus width. If I were to go here and make this as say
600, you will see this come in the center. And if I make this primary, whatever changes I make will be reflected on all of the other websites. Now, if this was not primary, and if my, let's just say, desktop was primary, all of the changes that I make will be reflected here. But if I make a change just on my tablet, it will not float up to the desktop. So can you notice, by default, the largest breakpoint is the primary one. And whatever changes you make here are reflected in the smaller ones. But if I make a change here in the tablet one, it will never go upwards. However, if tablet experiences the core experience, you can make this as the primary breakpoint, and whatever changes you apply here will be reflected to the rest of the web pages. Now, just like Figma design, you can create and use components very similar to having your Figma component libraries. You can create a fully adaptive responsive component, which also means that you can create multiple variants. Whatever prototyping that you've done on Figma design can be now translated into a proper website. You can customize a text style for multiple breakpoints, which means that maybe a text looks a 25 pixel at your heading, and you can sort of change that text style for a tablet versus a phone. So all of these notes are already there on the Figma community. And with that, we have now given a quick overview of how layout changes work. The next module is all about interactivity. Now, the interaction panel is on the right side, where you can choose the entire web page and sort of set a scrolling behavior, or you can choose a specific component and link it to a page, or even add all of these default interactions. And when we make a website, I will actually show you how each of these interactions work, because all of them have their own pros and cons, right? And if you've completed our prototyping course on Figma, you already know what I'm talking about. And folks, we've taken a very different approach to the Figma AI course as compared to what we did before, because a lot of people said that, Ansh, can you just give us like a eagle's eye view of all the features, and maybe once we understand the entire interface, then we can move on to the next version. And this entire tutorial is available in both English and in Hindi. So in the same video, right now I'm teaching in English, but in the second half, all of this is going to be taught in Hindi as well. So I'm going to give you a quick overview of the entire website, and then we can move on to the building aspect in the next video. Now, when it comes to links, there's this something called as a page link, which means that you can hyperlink something and it opens a new page. Then there is backlink, which means that you can return to the previous link, which is something that you can access from your browser's back button. And then there is anchor link, which means that maybe you have uploaded something on Dribbble or Behance and you want to connect that on your main site. Now, code layers, we've already done this. You can make this using the make component. You can put your prompt and you can create something very interesting. And then you can also create a code layer from an existing design. So you can extend features from your design files without starting from scratch. You can just go there, select a component that you might have made on Figma, very similar to what we did on Figma Make as well. So you'd be able to upload your content, you'd be able to upload your file and prompt things very, very easily. Now, if I go here into the make part, as you can see, you can keep on making multiple components. You can describe your idea. You can have a split screen so that you can access the code, or you can just have the coded version as well. Let's come back here. And now that we have understood the custom component part of things, how do you publish this, right? And of course, publishing is the most key step, because nobody is going to be able to access your website until unless you have published this on the internet. But before you publish anything, in the next episode, I'll show you how you need to test responsiveness at all breakpoints. And folks, please note that it's impossible to teach you something very, very valuable in just 30 minutes, right? So what we've done is we've split up the entire thing into modules so that you have the right approach and you can sort of learn these things in nugget forms and not just go through like a long marathon in the first way. So once we are ready with our design, we will be testing all of the responsiveness. We will be previewing the entire thing. And as I showed you in the settings panel, we will go through and put the metadata. We can put it on a basic domain right now. Just like Figma Make, if you've completed episode 2, you already know that Figma gives you free hosting once you have the paid plan. So all of this is only available on the paid plan, and you can put a password to your protected website. You can also add a cookie consent banner, which is there by default, so that you can basically understand how your user is interacting with your website. Just like always, Figma has a wonderful community of ready to use templates. They have made websites for all kinds of use cases, whether it's for photography, video editing, portfolio, you want to launch a startup, you have all of these templates in place. And as I told you folks, AI is always the baseline. It is not the finish line. It's not going to replace designers. It's going to raise the benchmark and set a new expectation for
all the designers, and you have open source UI files that you can basically plug and play. Now the question is, what's the difference between code layers in Sites and Figma Make? Why do I need to even open Figma Sites when I was able to do everything in Figma Make? Problem here is that most people think that Figma Sites is a coding tool, but it's not. Figma Make is a development tool that can help you make prototypes or specific components, and those components can be embedded in your website. But it is Figma Sites that gives you true design access, right? You don't have all of these auto layouts and text layouts and all of these things in Figma Make. Figma Make is something that can help you make the unit, but the composition of the unit is done on Figma Sites. Why create a code component first as compared to making the entire website? When you go from an atom to the entire body, you can basically build all of these small things consistently. If you were to make the entire website randomly in Figma Make, you would realize that it's not according to the styles and aesthetics that you would want. But when you make something on Figma Sites, you have full control over the design. And if you want to code a certain component, you can go to Make and you can sort of build that one complex thing separately. Can I export the code of my site? It is currently not possible to export your site's code for external publishing. It is available for a certain component if you're using Make. Where is the site being hosted? They are using AWS in the United States, and the domain and routing is being served by Cloudflare. Now folks, this was a quick overview of basics of Figma Sites on how it works. If you have completed this, do let me know in the comment section if you found this entire concept useful of actually using Figma Sites as compared to any other vibe coding app, so that we can eventually release lecture number 4, where instead of just showing you the UI, we will actually build things. So I hope that you've made your notes, and if the lecture 4 is already released, you will find the link in the description. Now this was episode number 3. Now that you're familiarized with all the core features of Figma Sites, in our next episode, we will create our own website from scratch using the features we've discussed so far, and also share some essential takeaways for effective website design. I hope that you're taking care of your mind and body. This was your instructor Ansh Mehra, and you were learning from the Cutting Edge School. Welcome to our free Figma AI course. इस कोर्स में मैं आपको Figma Make, Figma Sites एंड DevMode MCP सर्वर के सारे फीचर्स पढ़ाऊंगा, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। ये हमारे Figma AI कोर्स का 3rd एपिसोड है, जहाँ पे हम Figma Sites के बेसिक्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको Figma Sites को अच्छे से एफिशिएंटली यूज करना आ जाएगा, और आप अपनी खुद की एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट भी बना पाओगे। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर अंश मेहरा, एंड आप सीख रहे हैं फ्रॉम द कटिंग एज स्कूल। Figma Sites अभी बीटा फेज में है, बट आप अपने स्टार्टर प्लान पर इन फीचर्स को यूज कर सकते हो विद अ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट फोक्स, तो ये है हमारे पूरे कोर्स का लेक्चर नंबर 3। अगर आप ये वीडियो पहली बारी देख रहे हो, अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं भी देखे हैं, तो इट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज ये जो पूरा 6 एपिसोड का कोर्स है, इसमें हम फिग्मा के सारे नए AI टूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, जिससे आपको पता चले कि भाई ये जितने भी नए फिग्मा के टूल्स है, ये फिग्मा डिजाइन से कैसे डिफरेंट है, इनको सीखने का फायदा क्या है, और इनको सीखने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जहां से आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। तो अभी जो हम सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं उसका नाम है Figma Sites। एंड क्वेश्चन ये है कि भाई Figma Sites सीखना ही क्यों है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स है। तो ये जो पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम कुछ ज्यादा बिल्ड तो नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम होगा, बट एक बिगनर्स ओवरव्यू दिया जाएगा इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक तो Figma Site काम कैसे करता है, इसके अंदर हम चीजें डिजाइन कैसे करते हैं, अपने वेबसाइट लेआउट को स्ट्रक्चर कैसे देते हैं, इंटरैक्शंस का पैनल किधर है, इस वेबसाइट को पब्लिश कैसे करते हैं, Figma Sites की कम्युनिटी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 पे आते हैं कि भाई ये जो Figma Site है, ये Figma डिजाइन से डिफरेंट कैसे है। अब अगर आपको Figma यूज करना है तो आप figma.com पे जाके अपना अकाउंट बनाओ। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको उनके सारे नए टूल्स दिखेंगे। तो अभी मैं क्लिक करूंगा Figma Site के ऊपर। जैसे ही सॉफ्टवेयर खुलेगा, एक पॉपअप विंडो ओपन होती है, जहां पे मुझे Figma Sites बोलता है कि ये काफी सारे मेरे पास टेम्पलेट्स है, आपने अगर शुरुआत से करना है तो शुरुआत से कर लो, टेम्पलेट से करना है तो टेम्पलेट से कर लो। अब एज बिगिनर्स मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि एक टेम्पलेट से ही शुरू करो, और जो पहला आपका भी होमवर्क है इस बारी, वो ये है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है यूजिंग Figma Sites। बिकॉज एक पोर्टफोलियो ही एक ऐसी चीज है जो आपको अपनी ड्रीम जॉब या ड्रीम क्लाइंट तक पास लेके जाएगी, और
काफी लोगों पे एक अच्छा पोर्टफोलियो ही नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। अगर आप पोर्टफोलियो पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी। मैं यहाँ पे सबसे सिंपल वाले पे जाता हूँ, विच इज लाइक अ सीवी, और अगर मैं प्रीव्यू एंड ब्राउजर क्लिक करूँ तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से आपका पूरा लेआउट बन रहा है और यहाँ पे आप चीजों को हाइपर लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने बस अभी तो डमी लिंक्स डाली हुई है, बट जब आप अपना पोर्टफोलियो डालोगे तो आप यहाँ पे काफी सारी चीजें कर सकते हो। तो अब मैं क्लिक करूंगा यूज दिस टेम्पलेट को। अब आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा यूआई काफी हद तक फिग्मा डिजाइन और जो हम यूजुअली जिस तरीके से डिजाइनर्स काम करते थे कंपोनेंट्स पे, कंपोनेंट्स के वेरिएंट्स पे, उस हिसाब से आपका राइट पैनल भी बना हुआ है और आपका सेंट्रल कैनवस भी बना हुआ है। दो तीन चीजें हैं जो यहाँ पे अब नई है। सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है जिसको हम बोल रहे हैं पेजेस। तो अगर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाओ तो यू विल सी दिस फाइल ऑप्शन। यहाँ पे ये वेब पेजेस है, लेयर्स है, एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो बेसिकली हम पहले समझेंगे कि ये लेफ्ट साइड में क्या क्या चीजें हैं, ये बॉटम बार किस काम का है और ये राइट बार किस काम का है, और कैसे आप एक वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस के लिए बना सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा फाइल वाला ऑप्शन। तो फाइल के अंदर ही आप अपने पूरे वेबसाइट के अलग अलग पेजेस मैनेज करते हो और हर वेबसाइट के अंदर कौन सी लेयर्स है उनको मैनेज करते हो। तो यहाँ पे अगर मैं वेब पेज पे प्लस क्लिक करूंगा तो एक और वेब पेज आ जाएगा, जैसे कि इसका मैं नाम रखता हूं केस स्टडीज। अब यहाँ पे कोई भी अगर एक पेज हो तो मैं उसको लिंक कर सकता हूँ। यहाँ लिंक पे जाके मैं कोई भी एक चीज को लिंक कर सकता हूँ टू दैट केस स्टडी पेज। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं तो दिस आइटम अगर कोई इस पे क्लिक करेगा तो वो इंसान यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मैं कॉपी करके यहाँ पे इसको कुछ एक डमी फाइल बना दूं तो आप देख सकते हो कि ये शो केस स्टडी है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं आऊंगा तो इधर हम पहुंच जाएंगे। अब ये इसलिए खराब लग रहा है क्योंकि मैंने वहां पे उसकी अलाइनमेंट ठीक से नहीं करी हुई। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सेंट्रली अलाइन कर दूंगा, अब यहाँ पे अगर मैं प्ले बटन पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप में ये सेंट्रली अलाइन आ गया है। अभी मैंने इस पार्ट को कवर नहीं करना, पहले थोड़ा हम बेसिक्स को कवर करते हैं। जैसे ही आप लेफ्ट मेन्यू पे जाते हो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्लस का आइकन है। ये प्लस का आइकन आपको बहुत काम आने वाला है, स्पेशली अगर आप प्रॉपरली एक वेबसाइट बनाने वाली एजेंसी रन कर रहे हो। होता क्या है कि जितने भी मार्केट में वाइब कोडिंग वाले टूल्स है जो वेबसाइट्स बनाते हैं, प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, काफी सारे डिजाइनर्स को बहुत रिस्ट्रिक्टिंग लगता है, बिकॉज हम डिजाइनर्स को खुद से सारे कंपोनेंट, सारी छोटी छोटी चीजें, हवर एनिमेशन, सब चीजों बनाने का बहुत शौक होता है। बट वाइब कोडिंग टूल्स में जब तक आप उसको टेक्स्ट में फीडबैक देते हो आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि अरे ये तो मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहा। यहाँ पर अगर आप फिग्मा डिजाइन में अच्छे हो, और बाय द वे अगर आपको फिग्मा डिजाइन नहीं आता है, अगर आपने लाइफ में कभी फिग्मा नहीं करा है, तो जो फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग है ऑफ यूएक्स ऑफ फिग्मा, उसका भी हमने एक 9 वीक लंबा 9 हफ्तों का हमने एक कोर्स बनाया हुआ है जो आपको यहाँ पे learnuiux.in पे मिल जाएगा। तो अगर आप पहली बार डिजाइन में एंटर कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आप फिग्मा साइट्स में रेडीमेड टेम्पलेट यूज करके कोई बहुत ही बढ़िया चीज बना सकते हो। बट यही अगर आपने फिग्मा डिजाइन भी सीख लिया और अगर आपने ऑटो लेआउट, कंपोनेंट्स, वेरिएंट्स, प्रोटोटाइपिंग, ये सारी चीजें सीख ली तो यू विल फ्लोट टू द टॉप 0.1% ऑफ द इंटायर डिजाइन इंडस्ट्री। लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि अंश, अपॉर्चुनिटीज के लिए हमको क्या सीखने की जरूरत है? आई थिंक अगर आपने फिग्मा डिजाइन, फिग्मा साइट्स और फिग्मा मेक ये तीनों स्टैक सीख लिए, यू विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल। अब यहाँ पे जो इंसर्ट सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक है हमारा ब्लॉक्स का एरिया जहाँ पे हमारे रेडीमेड टेम्पलेट्स है, पेजेस के लिए, नेविगेशन एलिमेंट्स के लिए, हीरो सेक्शन के लिए, स्पेसिफिक फीचर्स लाइक कैराउजल्स के लिए, अगर आपको कुछ इम्बेड करना है तो वो सारी चीजें भी है, वरना आप अपनी खुद की भी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर सकते हो। सर्च में जाके आप सारे कंपोनेंट्स देख सकते हो। जो एक नई चीज है जो शायद आपने पहले ना देखी हो वो है हमारा कोड कंपोनेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो एंड आप डिजाइन में तो कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो स्टैटिकली बहुत सिंपल लग रही है, बट उसका एक्चुअल इंटरेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेट्स जस्ट से कि मेरे को एक कैराउजल बनाना है और इस तरीके से मुझे उसमें कूल एनिमेशंस करनी है। यहाँ पे आपको मेक बहुत काम आता है। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी मेक पढ़ाया हुआ है। मेक इज अ टूल दैट कैन एक्चुअली क्रिएट प्रोटोटाइप्स, इट कैन एक्चुअली क्रिएट इंटरैक्टिव कंपोनेंट्स। तो मेक की इस फंक्शनैलिटी को यूज करके आप एक्चुअली में नई नई चीजें अपने वेबसाइट में डाल सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट करोगे, जैसे हम मेक में करते हैं, ये सारा कंपोनेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे या तो आप इसको अपने कैनवस पे ऐड कर सकते हो, आप लिटरली इन सारी चीजों को एज डिजाइन लेयर्स अपने कैनवस पे पेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक नया फ्रेम बन गया है और
उसके अंदर ये सारे अलग अलग कंटेनर्स बैठे हुए हैं, तो यू कैन सॉर्ट ऑफ मेक चेंजेस टू इट, देन यू कैन सेंड इट टू फिग्मा मेक, यू कैन क्रिएट दैट कंपोनेंट एंड यू कैन ऐड दोस थिंग्स ऑन द कैनवस। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन से फीचर्स कहाँ पर है। आप उसका स्प्लिट स्क्रीन देख सकते हो, प्रीव्यू और कोड का। आपको अगर सिर्फ कोड देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। तो इट्स अ वेरी वेरी कूल वे टू मेक अ कूल कंपोनेंट एंड देन सॉर्ट ऑफ रीयूज देम अक्रॉस डिफरेंट वेब पेजेस। फिर आते हैं हम सेटिंग्स पैनल पे। ये वो एरिया है जहां पे आप अपनी साइट का टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, लैंग्वेज जो कि एक आईएसओ कोड होता है, आपको इजीली चैट जीपीटी बता देगा, आपका फैब आइकन, आपका सोशल शेयरिंग इमेज, विच मींस कि अगर आप ये यूआरएल कॉपी करते हो और इसको किसी को व्हाट्सएप पे भेजते हो, फेसबुक पे भेजते हो, तो वहां पे एक इमेज आता है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि हर एक वेब पेज का आप अलग से भी ये सारा मेटा डिस्क्रिप्शन और ये सोशल शेयरिंग इमेज चेंज कर सकते हो। डोमेन्स की अगर बात आए तो जैसे आप पब्लिश करोगे आपको एक फ्री डोमेन अपने आप मिल जाएगा, बट उसमें आपका नेम .figma.site होगा, वरना आप खुद का भी एक डोमेन ऐड कर सकते हो। अगर आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहां पे आपने कस्टम फॉन्ट्स डाले हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, सो दैट अगर कोई और आदमी उस वेबसाइट को खोले तो वो सारे फॉन्ट्स इजीली एक्सेस हो पाए। फिग्मा साइट्स का एक बहुत बड़ा वैल्यूबल फीचर ये है कि इट विल हेल्प यू फिक्स इश्यूज बिफोर यू पब्लिश। तो अगले एपिसोड में जब मैं एक्चुअली मैं बिल्डिंग कर रहा हूँ, यू विल सी हाउ सारे के सारे इश्यूज अपने आप कॉल आउट हो जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे तो हो गया हमारा मेजर कंपोनेंट्स एंड क्रिएशन वाला एस्पेक्ट। ये जो नीचे का पार्ट है ये है हमारा टूल बार। अब बेसिक टूल्स ऑलमोस्ट सबको आइडिया है, मूव हो गया, हैंड टूल हो गया, स्केल हो गया। स्केल का मतलब ये कि आपने कोई भी चीज पकड़ी, आप अगर के भी प्रेस करते हो तो आप उसको इजीली स्केल कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं जाऊं, ये जो नया वाला पार्ट है ये है मेरा नया पेज डालने का। तो जैसे कि मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि एक नया वेब पेज ऐड हो रहा है। इफ यू प्रेस W ऑल्सो तो उसका शॉर्ट की है। और ये है फ्रेम का ऑप्शन कि आपने पहले कंपोनेंट्स बनाए और कंपोनेंट्स को अपनी वेबसाइट में डाल दिया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझने को ये है कि जब आप एक वेब पेज बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट ये डेस्कटॉप के लिए वेब पेज बना रहा है, और डेस्कटॉप के आगे एक ये प्राइमरी वर्ड है। ये क्या है ये भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। बट जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो वो वेबसाइट फोन पे भी खुलनी चाहिए, टैबलेट्स पे भी खुलनी चाहिए। तो उसके लिए अगर आप प्लस साइन पे क्लिक करो तो यहाँ पे आप प्लस पे टैबलेट और मोबाइल डाल सकते हो। एंड देन अगर आपने कोई भी अच्छा कंपोनेंट बनाया है, अगर आप उसको डेस्कटॉप पे डालते हो तो वो आपका टैबलेट और मोबाइल पे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाता है। बट यही अगर आप कोई चीज टैबलेट पे डालो तो आप देख सकते हो कि वो बाकी जगहों पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो जो चीज आप प्राइमरी पे डालते हो वो ही बाकी दो में जाती है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ये आगे भी मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। नीचे से ऊपर कुछ नहीं जाता, मतलब मोबाइल में कुछ डालू तो जरूरी नहीं कि वो टैबलेट और डेस्कटॉप में आ जाए। अभी जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूं तो आप देख सकते हो कि कोई भी चीज ऊपर नहीं जा रही। बट यही अगर मैं कोई चीज डेस्कटॉप में डालूं तो आप देख सकते हो कि वो सारी की सारी चीजें इजीली मेरे पास कैस्केड हो गई है टू द वेरी सेंटर। ठीक है, अब अगर मैं बाकी एक बार टूल्स की भी बात कर लूं, ये आपके नॉर्मल शेप्स हो गए, ये हमारा पेन टूल हो गया, इमेजेस, टेक्स्ट एंड कमेंट्स। ये वाला जो पार्ट है दिस विल गिव यू एक्सेस टू सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड ऑल्सो गिव यू एक्सेस टू एआई फीचर्स एज वेल। तो अगर आपको कंटेंट लिखना है, इमेज का रेजोल्यूशन बढ़ाना है, अगर आपको कोई इमेज क्रिएट भी करना है, ऑल ऑफ दैट इज नाउ बिल्ट इन इनसाइड ऑफ फिग्मा साइट्स। अब अगर राइट साइड की बात करें तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि दिस लुक्स वेरी वेरी सिमिलर टू फिग्मा डिजाइन। एंड यस, यही इसका सबसे बड़ा ब्यूटी है। इफेक्ट से लेके, वेरिएबल से लेके, कलर स्टाइल्स तक, टाइप स्टाइल्स तक, वो सारी चीजें जो हम डिजाइनर्स ने फिग्मा डिजाइन में सीखी थी वो फिग्मा साइट्स में भी अवेलेबल है। ब्यूटी इस बात की है कि आप जो जो चीजें बना रहे हो वो एक्चुअली कोड में भी कन्वर्ट हो सकती है। बट हाँ, सिर्फ स्टैटिक वेब पेज नहीं बनाना बड़ी बात होती है, एक्चुअली में इसमें इंटरैक्शंस डालना बड़ी बात होती है। तो उसी को समझने के लिए अब हम आते हैं मॉड्यूल नंबर 2 पे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप एक वेब पेज डाल सकते हो। वेब पेज के अंदर आपके पास अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि जब आप एक कंप्यूटर से टैबलेट में वेबसाइट खोलते हो तो थोड़ी तो चेंजेस होती ही है। जैसे अगर मैं अपनी वेबसाइट खोलूं और अगर मैं इसको श्रिंक करूं, ये तो अभी कंप्यूटर पे है, अभी मैं इसको श्रिंक करूं तो आप देख सकते हो कि इसका पूरा का पूरा लेआउट चेंज हो रहा है। अब ये जो लेआउट चेंज हो रहा है ये एक सर्टेन विड्थ पे चेंज हो रहा है। ये जो आप नंबर देख रहे हो ना 1280, 800, 799, ये विड्थ है इन पिक्सल्स। और ये जो 1280 प्लस लिखा हुआ है ये बेसिकली एक लाइन है, एक डेडलाइन है, एक लिमिट है। लिमिट ये है कि अगर मेरा विड्थ ऑफ द स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे मेरा वेबसाइट खुल रहा है, अगर उसका विड्थ 1280 पिक्सल से ज्यादा हुआ तो वो ये वाला वेबसाइट दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेस्कटॉप और इसको जरा स्केल कर देते हैं और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ टैबलेट, ठीक है,
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको मोबाइल। और अब अगर हम इसको प्ले करते हैं तो जैसे जैसे मैं श्रिंक करूंगा आप देखो क्या हो रहा है, डेस्कटॉप आ रहा है। और एक और चीज आप नोटिस करना, एक एक्स्ट्रा फाइल भी आ रही है, ये आप देख रहे हो। ये कौन सी फाइल है? तो अब गलती मेरे से ये हुई कि जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो आप नोटिस करना ये मेरा एक टैबलेट टेक्स्ट है। यहां पर भी आपको एक यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा, ये मैंने अभी अभी डाला है, बट जो मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट था वो था ये। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो आप नोटिस करो कि तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे जब मैं मोबाइल सिलेक्ट कर रहा हूं तो मैं टेक्स्ट को ओवरराइट तो कर रहा हूं, बट फ्रॉम अ लेयर परस्पेक्टिव दे आर ऑल द सेम। तो अगर मैं इसको बोल्ड करूं तो ये सब लिंक्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं प्ले पे क्लिक करूं और इसको जरा हम पेज पे आ जाते हैं, तो ये इस तरीके से मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप, और ये जो इधर उधर भाग रहा है ये इसीलिए भाग रहा है क्योंकि अभी हमने सारी अलाइनमेंट्स ठीक से करी नहीं है। तो अगर मैं कंस्ट्रेंट्स डालता हूँ सेंटर के और सबको जरा सेंट्रली अलाइन कर देते हैं, अब आप देखो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। आप यहां से भी ब्रेक पॉइंट चेंज कर सकते हो। तो जब मैं टैबलेट पे जाता हूँ इसका ब्रेक पॉइंट है 800, मोबाइल का ब्रेक पॉइंट है 375, मतलब 375 पे पूरा का पूरा टेम्पलेट चेंज हो जाएगा। इससे पहले कि हम वेबसाइट को एक्चुअल में बिल्ड करें, मैं आपको वेबसाइट बनाने का जो एक थिंकिंग प्रोसेस है वो समझाना चाहता हूँ। एनी टाइम यू मेक अ वेबसाइट आपको ना ब्लॉक्स में सोचना है कि भाई ये टॉप ब्लॉक है, ये हीरो ब्लॉक है, ये मेरे फीचर्स का ब्लॉक है, और फीचर्स के ब्लॉक के अंदर भी हो सकता है अलग अलग ब्लॉक्स हो। तो ब्लॉक्स विद इन ब्लॉक्स की तरह सोचना है, बॉक्सेस विद इन बॉक्सेस की तरह सोचना है। और जब आप एक स्ट्रक्चर्ड लेआउट सोचते हो ना, जब आप सारी चीजें अच्छे से बनाते हो तो आपका एसईओ भी इंप्रूव होता है। अभी अगर मैं वापस जरा फिग्मा पे जाऊं तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरा पूरा का पूरा ऑटो लेआउट है, यहाँ पे हमारा कंटेंट है और हमारा फुटर है जो सबसे नीचे है। अब कंटेंट भी एक ऑटो लेआउट है जिसके अंदर और सारे ऑटो लेआउट्स है। सो कैन यू सी हाउ दीज आर सेक्शंस विद इन सेक्शंस, क्योंकि मेरे वर्क के अंदर भी फिर और ऑटो लेआउट्स है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कमांड वाई करता हूं तो आप देख सकते हो इट इज ऑल बॉक्सेस विद इन बॉक्सेस। अब आप भी जब एक वेबसाइट बनाओ तो आपको अपने माइंड में यही सब चीजें रखनी है। एंड ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट डिजाइन इन फिग्मा साइट्स, यू कैन क्रिएट इन फिग्मा डिजाइन एंड कॉपी पेस्ट इट हियर, वो सब कुछ इजीली हो जाएगा। जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करोगे आपका डिजाइन ऑटोमेटिकली एक वेबसाइट में कन्वर्ट हो चुका होगा। दैट इज द फन पार्ट। अब जब भी आप एक ऐप बनाते हो, एक ऐप बनाने में आपका एक स्पेसिफिक कलर स्कीम होता है, टाइपोग्राफी होता है, एक सर्टेन आइडेंटिटी होता है। वेबसाइट में भी सिमिलर है, आपको वो सारे डिजाइन एलिमेंट्स पहले डिस्कस करने होंगे और इसमें सॉफ्टवेयर से ज्यादा आपका दिमाग और क्रिएटिविटी लगता है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दीज थिंग्स प्रॉपर्ली और आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो। फिग्मा यूजर्स के लिए जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग फीचर रहा है सिंस द वेरी बिगनिंग, राइट, इट हैज बीन ऑटो लेआउट। जब मैंने फिग्मा डिजाइन करना शुरू किया था, व्हेन आई सॉ ऑटो लेआउट आई वाज ब्लोन अवे, क्योंकि इट इज सो क्लोज टू हाउ वेब डेवलपर्स थिंक एज वेल, राइट। धीरे धीरे डिजाइनर्स और वेब डेवलपर्स का जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो बिल्डिंग प्रोसेस है, वो बहुत सिमिलर होता जा रहा है। एंड ऑटो लेआउट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट। एंड अगर आप में से किसी को ऑटो लेआउट नहीं आता है, हमने प्रॉपर 1 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है ऑन लर्न यूआई यूएक्स। तो प्लीज अगर आपको ऑटो लेआउट में अभी भी कंफ्यूजन है तो आप उसको सॉर्ट जरूर कर लेना। तो ऑटो लेआउट ऑटोमेटिकली हमारे फिग्मा साइट्स में इनेबल्ड है। आप जितने भी ये सेक्शंस देख रहे हो इन सब में ऑटो लेआउट ऑलरेडी यूज हो रहा है, विच इज अ ह्यूज बेनिफिट। बट वेबसाइट्स में क्या होता है कि सिर्फ ऑटो लेआउट काम नहीं आता, एक और एलिमेंट है लेआउट्स का, जो है आपका पोजिशनिंग। एंड वेब में 4 तरीके की पोजिशनिंग होती है। तो अभी अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट पकड़ू तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोजिशन का पैनल है, और या तो ये रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है या स्टिकी है। अब इस सब चीजों का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे जाके रिलेटिव करता हूं तो आप देख सकते हो कि मैं इसका अलाइनमेंट भी नहीं फिक्स कर पा रहा हूं, और यहाँ पे ये जो ऑटो लेआउट वाला पैनल है वहां पे भी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर ही है। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं और यहाँ पे इसको स्ट्रेच करता हूं तो आप देख सकते हो सब कुछ सेंटर में ही है। अब इंडिविजुअली ये चारों चीजों को समझाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, एंड ये तभी समझ आती है जब आप यूज केसेस में इसको एक्चुअली में अप्लाई करो। तो जब हम अगले एपिसोड में वेबसाइट बनाएंगे तो मैं आपको इन चारों का डिफरेंस बताऊंगा। बट इन जनरल जो लोग वेब डेवलपमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं उनको पता है कि ये जो 4 सबसे पॉपुलर सीएसएस पोजिशनिंग टाइप्स है वो भी अब फिग्मा साइट्स में अवेलेबल आ गए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अंश, जितनी भी आप चीजें बता रहे हो आधी से ज्यादा चीजें तो हम फिग्मा डिजाइन में ही कर पा रहे थे, तो फिग्मा साइट सीखने की नीड ही क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल फिग्मा साइट्स इसको पूरे आपके डिजाइन को एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर रहा है, बट यहाँ पे एम्बेडिंग्स भी अलाउड है। आप वीडियोस तक डाल सकते हो अप टू 10 MBs, आप कस्टम फॉन्ट्स भी डाल सकते हो। एंड
that is a way better advantage. You can actually create these websites for smaller startups and sell them at scale, just by remixing templates with each other. अब याद है हमने ब्रेक पॉइंट्स की बात करी थी कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हो, अगर ये डेस्कटॉप है, जो मैं डेस्कटॉप पे करूंगा वो टैबलेट और मोबाइल में आ जाएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी ब्रेक पॉइंट। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर डेस्कटॉप प्राइमरी है तो जो भी मैं चेंजेस यहाँ कर रहा हूँ वो बाकी जगहों पे भी हो जाएंगे। अगर मैं टैबलेट वाले पे जाके राइट क्लिक करूँ और इसको एज अ प्राइमरी ब्रेक पॉइंट सेट करूँ, तो अगर मैं डेस्कटॉप पे कुछ बना रहा हूँ तो वो ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा है। बट यही अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ अपने टैबलेट में, तो आप देख सकते हो कि वो हर जगह यहाँ पर बीच में हमारे आ गया है। तो इसको भी मैं जरा सेंट्रली अलाइन कर देता हूँ, इसको भी हम सेंट्रली अलाइन कर देते हैं। तो जो भी आपका प्राइमरी ब्रेक पॉइंट होता है ना, उसमें जो आप चेंजेस करते हो वो बाकी दोनों जगहों पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप वेब डेवलपमेंट भी करते हो तो डेस्कटॉप ही प्राइमरी ब्रेक पॉइंट माना जाता है। बट फिग्मा साइट्स में आप पे वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे फिग्मा डिजाइन में होता था, हम कंपोनेंट्स बनाते थे, स्टाइल्स बनाते थे, यहाँ पर भी सेम रिकमेंडेशन है। एंड आप जितने भी ब्रेक पॉइंट्स पे अलग अलग कंपोनेंट्स बनाना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। आप अलग अलग वेरिएंट्स भी बना सकते हो। जिन लोगों को वेरिएंट्स का भी ऑप्शन नहीं पता है कि भाई कंपोनेंट में डिफरेंट वेरिएंट्स क्या होते हैं, वो सारा पार्ट भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो learnUIUX.in पे जाके प्रॉपर 1 घंटे का सेशन है जहाँ पे हमने सारे फाउंडेशंस ऑलरेडी समझा दिए हैं। वेरिएंट्स एक बहुत ही वैल्यूबल सब्जेक्ट है एंड इट विल हेल्प यू डू थिंग्स इन अ मच मोर स्मार्टर वे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स के लिए मल्टीपल टेक्स्ट स्टाइल्स बना सकते हो। तो जरूरी नहीं कि अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप टैबलेट एक फॉन्ट का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं फॉन्ट साइज छोटा करता हूँ 85 की जगह जैसे 65 करता हूँ, तो अभी तो ये प्राइमरी है। तो मैं काम करता हूँ डेस्कटॉप को वापस प्राइमरी बना देता हूँ और यहाँ पे अब हम आते हैं 65 की जगह इसको कर देते हैं 45 और इसको मैं कर देता हूँ से 10 तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, आई थिंक 18 कर देते हैं। यहाँ पर मैंने अभी तो नॉर्मली ओवरराइट किया हुआ है, बट आप चाहो तो यहाँ पे अलग से टेक्सटाइल्स बना सकते हो। तो टाइपोग्राफी में जाके आप यहाँ पे एक प्रॉपर टेक्सटाइल बना सकते हो जैसे कि मोबाइल लेबल। तो यहाँ पे हर एक कंपोनेंट के लिए रेकमेंडेड होता है, हर एक ब्रेक पॉइंट के लिए रेकमेंडेड होता है कि आप एक स्पेसिफिक टेक्सटाइल बनाओ। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप एक टेक्सटाइल बनाओगे, जब आप उस टेक्सटाइल की एडिटिंग करने जाओगे, तो आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट पे आप स्पेसिफिक चीजें कर सकते हो। तो मैं टेक्निकली इसको सिर्फ लेबल का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं, इसको सिर्फ लेबल का नाम देते हैं और मोबाइल के लिए मैं इसको कर देता हूँ यही वाला साइज, और टैबलेट के लिए मैं काम करता हूँ इसको कर देता हूँ 24 और हमारे डेस्कटॉप के लिए इसको हम कर देते हैं 54। ठीक है, तो अब अगर मैं जाता हूं और इन तीनों को सिलेक्ट करता हूं एंड लेबल सेलेक्ट करता हूं, तो अब देखो सारे के सारे फॉन्ट साइज इंडिविजुअली अडेप्ट हो गए हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी कूल फीचर एंड दिस इज हाउ इन जनरल द डिजाइन विल बी अप्रोच्ड। आपके टेक्सटाइल्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। बट अब क्वेश्चन ये है कि ये पोस्टर तो है नहीं, ये एक ब्रोशर तो है नहीं, वेबसाइट में तो इंटरएक्टिविटी भी होती है, तो वो सारे ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल है। नाउ इंटरएक्शंस के लिए स्पेसिफिकली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉलम। जैसे जब आप फिग्मा डिजाइन में प्रोटाइपिंग करते थे तो प्रोटाइप का कॉलम आता था, यहाँ पे हमारा इंटरएक्शन का कॉलम आ गया है। एंड इन्होंने क्या किया है, काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप उसका ट्रिगर डिसाइड कर सकते हो कि इन व्यू है, पेज लोड है, एंटरिंग एनिमेशन, एग्जिट एनिमेशन, आप रिप्ले देख कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं जो अभी आप कर सकते हो। बट हम क्या करेंगे, अभी पहले एक बार फीचर्स का ओवरव्यू कर लेते हैं, क्योंकि एक बार ये आपको सॉफ्टवेयर समझ आ जाए, सारे ऑप्शन समझ आ जाए, फिर जब हम एक्चुअली में बिल्डिंग कर रहे होंगे वहां पे थिंग्स वुड मेक मोर सेंस। एंड बाय द वे, इफ यू क्लिक ऑन मेक इंटरएक्टिव, तो आप उस स्पेसिफिक रेक्टेंगल्स के साथ एनिमेशंस यहाँ पर भी कोड कर सकते हो कि ऑन हवर ये सारी चीजें करनी है। अब इंटरैक्शंस में हर एक इंटरैक्शन का अपना अलग एक यूएसपी है, एक अलग इफेक्ट है। एक एक करके हम इंटरैक्शंस और पोजीशनिंग डिस्कस करेंगे, बट तब करेंगे जब हम बिल्डिंग पे आएंगे। एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट पे लिंक्स डालते हो तो 3 तरीके की लिंकिंग होती है। एक होता है आपका पेज लिंक, मतलब आपने एक एलिमेंट पे क्लिक करा और उस पे क्लिक करके आप एक दूसरे पेज पे पहुंच गए। फिर होता है आपका बैकलिंक। बैकलिंक का मतलब ये हुआ कि आपने किसी चीज पे क्लिक करा और वो आपको पीछे ले गया, मतलब आपने जैसे यहाँ पे क्लिक किया वो आपको पीछे ले गया इस पेज पे। तो जब आप अपने गूगल क्रोम पे बैक बटन क्लिक करते हो तो वही वाला इंटरेक्शन है। फिर तीसरा होता है एंकर लिंक, कि आपने बिहेंस पे कुछ डाला, ड्रिबल पे कुछ डाला, अपने इंस्टाग्राम पे कुछ डाला और उसको लिंक कर दिया टू समथिंग ऑन दिस वेबसाइट।
ठीक है। ये सारा वोकैबुलरी मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब हम बिल्ड करेंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और बहुत नया फीचर उन्होंने ऐड किया है वो है कोड लेयर्स का। तो यहाँ पे अगर मैं मेक पे जाऊं और एक फाइल ऐसे ड्रैग करूं तो एक विंडो खुल जाएगा एंड बेसिकली आई कैन सिलेक्ट दैट एरिया। इस एरिया के अंदर अब मैं जो जो चीजें टाइप करूंगा, जैसे अगर मैं डिजिटल क्लॉक क्लिक करूं और सबमिट पे क्लिक करूं तो वो ऑटोमेटिकली मेरे डिजिटल क्लॉक के प्रॉम्प्ट को समझ के यहाँ पर एक क्लॉक का एनिमेशन डाल देगा। नॉट इवन एनिमेशन, इट्स गोना बी अ प्रॉपर वर्किंग कोड। तो ये एक अलग से पॉपअप आ जाता है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक ये हो रहा है हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। बट इन द एंड क्या होता है कि जैसे आपका कंपोनेंट बन जाता है, यू कैन बेसिकली मेक चेंजेस टू इट, यू कैन एड इट टू योर वेबसाइट, यू कैन मेक एनी फिग्मा डिजाइन का फाइल इनटू अ कोड, यू कैन शो दैट एज अ वायरफ्रेम, यू कैन शो दैट एज अ फर्स्ट ड्राफ्ट एंड यू कैन हैव मेक बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट। तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। हमने स्लाइड्स में काफी सारे एग्जांपल्स डाले हुए हैं जिससे आप लोग भी एडिशनल लर्निंग में इन सब चीजों को यूज कर पाओ। एंड जब जब आप मेक में कुछ बनाओगे, अगर आपको उसको रीयूज करना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं मेक पे जाऊं तो आपने बस उसको कंपोनेंट बना के रखना है। अब ये जो कोड कंपोनेंट है आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो अक्रॉस योर इंटायर प्रोजेक्ट, सो वो पूरा रीयूजेबल है। जैसा कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये बन चुका है, थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो जब तक ये लोड हो रहा है हम जरा वापस आ जाते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद मॉड्यूल नंबर 4 की भाई पब्लिशिंग सेटिंग्स कहां पर है। मैंने एक्चुअली बिगिनिंग में ये कवर कर दी थी, बट एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कोई भी वेबसाइट को पब्लिश करने से पहले आपको एक तो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट करनी होगी, तो उसको प्रीव्यू जरूर कर लेना। एंड सेटिंग्स में जाके आपको मेटा डेटा, आपका टाइटल, अपना कस्टम डोमेन, आप ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो। और अगर आपके पास खुद का डोमेन नहीं है तो आप अपना नॉर्मल फिग्मा का भी जो बाय डिफॉल्ट डोमेन होता है एज एन एग्जांपल वो भी यूज कर सकते हो, बिकॉज एज अ स्टूडेंट और एज एन एजेंसी ओनर आपके कस्टमर्स को ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अच्छा बाय द वे ये हमारा कंपोनेंट रेडी हो गया है जिसमें आप खुद भी चेंजेस कर सकते हो। एंड जैसा कि आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे फीचर्स है जो आप इजिली चेंज कर सकते हो। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पर हाइड कंसोल एंड प्रॉपर्टीज करूंगा तो आपको पूरा का पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप ये वाला आइकन क्लिक करते हो तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करके प्रॉम्प्ट करके उस पर फीडबैक भी दे सकते हो। तो ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पर है। इसको जब मैं अपनी वेबसाइट में ऐसे फिट करूंगा, इसको अगर मैं के प्रेस करूँ और यहाँ पे ऐसे फिट कर दूं तो अब आप देख सकते हो वो हर जगह आ गया है। तो यही अगर मैं इसको प्ले पे क्लिक करूं तो ये टाइमर शुरू हो गया। अभी तो बहुत ही पुअर डिजाइन है, बट आई एम प्रीटी श्योर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें करना क्या है। तो एक बारी मैं आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाला फीचर दिखा देता हूं कि कभी कभी आपको अपना पोर्टफोलियो, अपनी प्राइसिंग, अपना केस स्टडी भेजना होता है और आप नहीं चाहते कि रैंडम लोग उसको देखे। तो यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे रिक्वायर पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा। आप अपना कस्टम कोड भी डाल सकते हो। कुकी कंसेंट हमेशा ऑन करके रखना सो दैट यू कैन बेसिकली गेट सम डेटा ऑन व्हाट योर यूजर्स आर डूइंग व्हेन दे रीविजिट। ऑल ऑफ द मेटा डेटा इज ऑलरेडी लोडेड, सो वेबसाइट जल्दी लोड होती है अगर आप कुकीज एनेबल करो। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू नीड टू गिव दैट कंसेंट बैनर। ये पहले से बना हुआ है तो लाइफ बिकम्स वेरी वेरी इजी। एक और बहुत वैल्यूबल फीचर ये है कि फिग्मा साइट्स का जो टेम्पलेट्स का ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है जो आपको फिग्मा कम्युनिटी पे मिल जाएगी। फिग्मा कम्युनिटी ऑलरेडी काफी लोग यूज कर ही रहे हैं, बट अगर मेरे को आपको फिर से भी एक बार दिखाना है, यहाँ पे कम्युनिटी पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट्स पे जाऊं तो भर भर के टेम्पलेट्स है जिनको आप रीयूज कर सकते हो। तो अभी अगर मैं चैटबॉट पे जाऊं, अभी चैटबॉट के अराउंड तो कोई ज्यादा टेम्पलेट्स आए नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि धीरे धीरे दीज पीपल विल कीप ऑन एडिंग थिंग्स। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि भाई ये कोड लेयर्स इन साइट्स जो है वो फिग्मा मेक से डिफरेंट क्यों है। इनफैक्ट फिग्मा मेक और फिग्मा साइट्स में ये क्या इशू है। अब जो कोड लेयर्स इन साइट्स है दैट कैन ऐड इंटरएक्टिविटी टू योर फिग्मा साइट्स। अगर आप एक डिजाइन भी यूज कर रहे हो, आप उस डिजाइन के अंदर इंटरएक्टिविटी डाल सकते हो, एक छोटा सा कंपोनेंट बना सकते हो। दैट कंपोनेंट इज अ स्मॉल एटम इन द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ योर वेबसाइट। फिग्मा मेक इज अ स्टैंड अलोन टूल फॉर 0 to 1 प्रोटोटाइपिंग। मतलब आपने प्रॉपर 3-4 यूआई बनाए, 3-4 यूआई को उस पर डाला और एक प्रोटोटाइप बनाया फॉर एन ऐप। इट कुड बी अ वेब ऐप और अ मोबाइल ऐप। काफी लोग बोलते हैं कि भाई पूरा का पूरा वेबसाइट में एक एक करके कंपोनेंट कोड करने की क्यों नीड है। तो दिस इज जस्ट अ डिजाइन अप्रोच। जब आप एक छोटे कंपोनेंट से शुरू करते हो और फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करते हो तो आपका जो ओवरऑल वाइब है, ओवरऑल स्टाइल है वो कंसिस्टेंट रहता है। दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल एडवाइस कि छोटे छोटे कंपोनेंट से शुरू करना, सबको ऑटो लेआउट में रखना, सबका इंटरैक्शन सॉर्ट करके रखना एंड देन यू सॉर्ट ऑफ पुट थिंग्स टुगेदर। कैन आई एक्सपोर्ट द कोड ऑफ माय वेबसाइट?
नहीं, फिग्मा मेक का जो कंपोनेंट का कोड होता है वो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, बट अपनी वेबसाइट का कोड आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये वेबसाइट होस्ट का हो रही है, तो जब आप अपना फिग्मा साइट्स का पेड प्लान लोगे तो ऑटोमेटिकली वो AWS पे उसको होस्ट कर देता है, और जो आपका डोमेन और रूटिंग है वो क्लाउडफ्लेयर के थ्रू हुआ है। अभी जो मैंने आपको एक टूर दिया है ना, वो फिग्मा साइट्स का बिल्कुल बेसिक है, इसमें हमने कुछ बनाया नहीं है। बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू देना बहुत जरूरी है, बट अगले एपिसोड में मैं एक्चुअली में आपको एक पूरी की पूरी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच। दिस वॉज एपिसोड नंबर 3। अब जब हम फिग्मा साइट्स के सारे कोर फीचर्स से फेमिलियर हो चुके हैं, तो अगले एपिसोड में हम अपने खुद की वेबसाइट बनाएंगे, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से, एंड वो सारे फीचर्स यूज कर पाएंगे जो हमने डिस्कस किए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज भी शेयर करे जाएंगे टू मेक अ वेरी वेरी कूल वेबसाइट। आई होप दैट यू टेकिंग केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर अंश मेहरा, एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम द कटिंग एज स्कूल।